नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। एक्टर एंड मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से आज हम सब सकते में हैं। उनकी मौत ने हमारे सामने सेहत को लेकर काफ़ी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कैसे एक हेल्दी और फिट इंसान भी हार्ट अटैक से मर सकता है। आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद कुमार पांडे से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर आनंद, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से हुई मौत ने हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महज 40 साल की उम्र और एकदम फिट और हेल्दी इंसान को हार्ट अटैक होने के पीछे आखिर वजह क्या है? Good afternoon good afternoon to our audience and Gunjan, you have asked very relevant question जो as a cardiologist मैं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिजीज शिफ्ट हुई है। जो डिजीज पहले 6th and 7th डिकेड में थी, 50% पेशेंट्स हमारे बहुत यंग हैं एंड 40 एंड उसके पहले की एज में आ रहे हैं। And I remember youngest patient which I had seen, जिसकी मैंने एंजियोप्लास्टी की थी, was just 21 year old. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला को, पहले तो my condolences to his family and it's a real loss of a very bright star from TV industry. लेकिन जो हम लोग देखते हैं, what we see is a glitter, what we see is his physical fitness. मुझे याद है जब हम लोग MBBS की शुरुआत में डेफिनेशन बताते थे हम गुड हेल्थ की, it was complete physical, social and mental well-being. That is what it completes the health. आप physically बहुत fit हो, लेकिन अगर आप बहुत stress, anxiety, you're in a chronic stress which is like a disease process. You are in a hurry, you are curry and worry. ये बहुत सारे triads होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, which makes you prone for heart disease. Lack of sleep है, देखिए traffic jams हैं, pollutions हैं, आपका there is a continuous struggle to maintain you at the top of the industry. बहुत सारे डिमांडेज होते हैं, आपके पीयर ग्रुप से प्रेशर होता है, आपकी फैमिली का प्रेशर होता है, आपका अपना प्रेशर होता है। एंड कोविड हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम, ऑलमोस्ट 1.5 years शूट्स सारे बंद थे, कोई प्रोग्राम्स नहीं चल रहे थे। आई थिंक दिस वाज ऑल, आई एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आई कैन स्पेकुलेट could be a reason of such a premature death. इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा, फिजिकल हेल्थ की हम लोग बहुत बात करते हैं, बट nobody focuses on mental health. जी बिल्कुल। And kind of believe India is the world capital for depression and society and maximum number of anxiety disorders are in young Indian patients. आज भी मैंने अगर 25 पेशेंट देखे हैं तो उसमें 1/3 पेशेंट्स को कोई डिजीज नहीं है। They need counseling, they need reassurance, they need documentation कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है। It's high time. I must appreciate your channel. We must focus on mental health and social well-being also. That without that you cannot achieve the complete health as a goal.
जी बिग बॉस में रहते उन पे ये भी कहा गया था कि वो एंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं, यानी वो डिप्रेशन के शिकार है, जैसा कि अभी आपने भी कहा। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है उनके हार्ट अटैक की? डेफिनेटली देखिए, डिप्रेशन इज अ वन वेरी स्मॉल वर्ड बट इट टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन। अगर कोई सच अ ग्लिटर वर्ल्ड में रह रहा है, सी बॉलीवुड इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लिटरिंग इंडस्ट्री आई कैन जी सी, जी। बट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड आई कैन से हियर। Siddharth Shukla, see, as a viewer, I could watch his Balika Vadhu when he was a very young, very handsome, dynamic actor, and then he has been for last, I think, 10 years in industry. तो कुछ ऐसा रहा होगा जो एक फिजिकली हेल्दी आदमी को sudden cardiac death की तरफ ले जाए. जी And we don't know. See, what we have seen is his physical fitness. We don't know what his parameters were. What was his lipid profile? What was his CRP? What was his hemoglobin? What was his lipid profile? So there are many things which make a health complete. Otherwise, depression itself, those who have depression have a very high chance of heart disease because they are into continuous struggling with the environment, with the working place, with the people they are sharing with. So depression is, yes, very important point. I think could be a reason of triggering this event in this case. पर जो ये मामला है उसने हमारे सामने एक और सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे देश में जो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं आखिर, डॉक्टर ये बताइए आप। देखिए, मुझे याद है जब मैं एमडी मेडिसिन कर रहा था, इट इज समवेयर बिटवीन 1993 एंड 94. इट इज ऑलमोस्ट 25 इयर्स जर्नी एज अ मेडिकल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट देन सुपर स्पेशलिस्ट. जो मैंने देखा है अभी, पीपल हैव बीन लिविंग इन आर्टिफिशियल क्राइसिस आल्सो. When I say artificial crisis means I can afford this, but I want this. So there are two different things. I can afford, I can buy, and I want this. So there is a continuous struggle. People are into economic burden. Then there is a show of business. I want to show what I have, which nobody bothers actually. So this is what is a. Then pollution has played a very important role. You see the traffic jams. खासकर बॉम्बे अगर देखिए आप, तो आपको 1.5 घंटे जो दूरी आप 5 मिनट में तय करना चाहते हैं वो 1.5 घंटे में होती है. पोल्यूशन हैज बीन वेरी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड टू हैव एनी फॉर्म ऑफ डिजीज, रादर वेदर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, इट कैन कॉज एनीथिंग. So you are living in a very polluted atmosphere. You are eating a lot of food items are very important. We are eating fast foods. Fast foods are making you more prone for all the diseases. So we are away from natural foods like lack of fruits and vegetables, low fat dairy products, रेगुलर वर्कआउट है. तो वर्कआउट तो सिद्धार्थ शुक्ला के केस में नहीं कह सकते, ही मस्ट बी डूइंग अ गुड वर्कआउट. बट डाइट कैसी थी, शेड्यूल, एक बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोग बोलते हैं कि आप कब उठते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप बॉडी को शेड्यूलिंग कैसे करते हैं. अभी एक पेशेंट आया था, ही वाज वर्किंग फ्रॉम 5:30 PM इन द इवनिंग टू 4:30 AM इन द मॉर्निंग. आपका पूरा सिस्टम, ही वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल मैनेजर, बट योर सिस्टम इज टोटली हेवायर. बॉडी को ये नहीं पता आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब जागेंगे, कब नाश्ता करेंगे, कब लंच करेंगे, कब ब्रेकफास्ट करेंगे. अल्टीमेटली बियॉन्ड 40, जैसे आप 40 के ऊपर जाएंगे तो एक सिस्टम बोलना शुरू हो जाता है, मुझे लगता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड लाइफ एंड मेंटेनिंग गुड बायोलॉजिकल क्लॉक. जी, जैसे आपने कहा कि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, पर कहा जाता है कि वो काफ़ी एक्सरसाइज और वर्कआउट करते थे, तो क्या ज़्यादा वर्कआउट और एक्सेस यूज ऑफ स्टेरॉइड भी उनकी हार्ट अटैक की वजह हो सकती है? यस, व्हाई नॉट. देखिए, कहते हैं ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप. किसी चीज का एक्सेस इज नॉट गुड. जी बिल्कुल. आई हैव सीन, यू शुड बी हेल्थ कॉन्शियस, इट इज वेरी गुड आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ ऑब्सेस हैं, टू मच ऑफ एक्सरसाइज, कि 2 घंटे आपने जॉगिंग किया, फिर साइकिलिंग किया, फिर आपने शाम को वर्कआउट किया, बियॉन्ड अ लिमिट इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव. प्लस कंबाइंड विद डिप्रेशन, कंबाइंड विद फाइनेंशियल बर्डन्स. और डाइट, एक जिम में बड़ा, मैं हमेशा जो यंग बच्चे आते हैं जो हमारे पास कंसल्टेशन के लिए, आई से गो फॉर नेचुरल डाइट्स. Don't go for artificial diet like whey protein. I'm not denying that they are not good, but too much consumption of unnatural, industrially produced जो हमारे nutrients होते हैं, I'm little against them. Go for natural, good amount of fruits. अभी आप मिलन सुमन का इंटरव्यू पढ़िएगा, he consumes almost 2 kg of fruits per day, and you see how fit he is. Right. So मुझे लगता है we should be as close to nature as possible. जी बिल्कुल. I think you will have very physically fit and mentally healthy lifestyle also.
मैं अभी सुबह भी ये डिस्कस कर रही थी, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक से पहले हमारी बॉडी कैसी इंडिकेशंस देती है जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, या अगर वो सिद्धार्थ शुक्ला के केस में हुआ है ऐसा तो? देखिए ऐसा होता है कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब, पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं हमारे पास और वो उस समय तो डिनाई करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, बट व्हेन यू गो फॉर रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कि कोई तकलीफ थी आपको, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब 3-4 दिन से चलने में थोड़ा सांस फूलती थी, थोड़ा चेस्ट में हैवीनेस होता था, थोड़ा इनडाइजेशन, अनएक्सप्लेन्ड इनडाइजेशन था जिसको मैं गैस मानता था। तो मैं आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू एजुकेट पीपल दैट इफ यू हैव एनी जॉ पेन व्हिच इज फ्रॉम द लोअर जॉ गोइंग both chest, going to both arms, coming up to the lower end of chest, going to back, you are feeling sweating, you are feeling palpitation, you feel exhausted, you feel unexplained gastric symptoms, I think they are all warning signs of heart disease. There is no harm in visiting. Majority patients, they don't survive. Some people say कि डॉक्टर साहब गए थे लेकिन इलाज नहीं हुआ. I feel it is very minority. Majority patients don't get right treatment at right time. So denial of good treatment, because heart muscle is a timeless muscle, every seconds matter. And if somebody goes beyond 6 hours to a cardiologist or to hospital heart attack के बाद, तो I think जो हमारा main achievement होता है वो heart disease का, वो हमारा purpose defeat होने लगता है. So they are warning signs, I think which we must educate patients not to ignore. तो सिद्धार्थ शुक्ला मामले में आपको क्या लगता है डॉक्टर की, क्या उन्होंने इंडिकेशंस जो हुए थे सिम्टम्स के उनको इग्नोर किया या फिर हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हुई, क्या हुआ? देखिए 50% अगर आप स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करेंगे तो 50% कार्डियक पेशेंट दे डोंट रीच हॉस्पिटल. कई बार वो वार्निंग साइंस को इग्नोर करते हैं. जैसे मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला, बट कई बार होता है कि आपने 2 घंटे वर्कआउट किया उसके बाद आपको हल्का सा हैवीनेस हो रही थी. कई बार पेशेंट आते हैं डॉक्टर नहीं मैंने वो वेट उठा लिया था, मैंने थोड़ा सा जिम ट्रेनिंग ज़्यादा कर ली है बट मुझे दर्द हो रहा है, बट व्हेन वी असेस देम वी फाइंड कि इट इज़ ए टिपिकल हार्ट डिसीज. तो मे बी ही हैड सम वार्निंग सिम्टम्स जिसको उन्होंने इग्नोर किया और बाय द टाइम ही रियलाइज्ड ही वाज ऑन द वे टू हॉस्पिटल. बट 50% पेशेंट जिनको एक्यूट हार्ट अटैक होता है जी, वो कई बार हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते एंड देयर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज सडन कार्डियक डेथ. कि डॉक्टर साहब रात में सोए सुबह उठे नहीं, पार्क में गए तो लौटे नहीं. सो दिस इज वेरी कॉमन, दो इट इज कॉमन इन एल्डरली पेशेंट एंड डायबिटिक्स, बट यस मेडिसिन हैज नो रूल. आई से इट इज पार्टली मेडिसिन, partly logic and partly art of medicine. Maybe he might have ignored, and by the time he reached hospital, probably he had a severe heart attack and he could not survive. जी बिल्कुल. डॉक्टर मैं आपसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में दोनों में डिफरेंस जानना चाहती हूँ. देखिए कार्डियक अरेस्ट एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है. कार्डियक अरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हार्ट अटैक होता है. जैसे मैंने बोला 50% हार्ट अटैक्स का पहला प्रेजेंटेशन होता है कि चेस्ट पेन हुआ, थोड़ा गैस्ट्रिक सिम्टम्स है और जब तक रियलाइज करते घर वाले पेशेंट वाज नो मोर. तो कार्डियक अरेस्ट इज वन प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक. कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉमन रीजन होते हैं. अल्टीमेटली किसी भी पेशेंट की अगर डेथ होती है इट इज कार्डियक अरेस्ट. जब तक हार्ट चल रहा होता है तब तक मरीज जिंदा रहता है. तभी कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म और वन ऑफ द रीजन इज हार्ट अटैक. बट एरिथमियाज होते हैं, कई बार आपका रिदम बिगड़ गई, जैसे फिल्मों में देखा. अभी आपको इफ यू रिमेंबर यूरो कप हुआ था, उसमें एक फुटबॉलर while playing football he had a cardiac arrest. Since they had all the gadgets and he was survived, then he had a major cardiac procedure. श्रीदेवी cardiac arrest is cardiac arrest हुआ जी श्रीदेवी. and it can affect any class of society, like सिद्धार्थ शुक्ला को लीजिए आप, श्रीदेवी को लीजिए आप, or you go back to this footballer who was in Euro Cup. So it doesn't follow any rules and regulations. So it is your heart. And मैं आपके चैनल से एक और चीज बताना चाहूंगा. इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है जी बिल्कुल. still I feel people, if you spend money for 3,000 4,000 preventive health checks, they find it waste. स्पेशली अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो लगता है यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए. तो मैं हम लोग एजुकेट करते पेशेंट को, यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड लकी your reports have been normal and you are almost symptom free for next 2 to 3 years. जी डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किन लोगों को हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा रहता है? देखिए कन्वेंशन रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें, आप ब्रॉडली डिवाइड करें तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाइबल बोलते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं बाय कॉन्शियस डिसीजन टेकन बाय अस इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. कुछ होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे बीइंग मेल यू आर मोर प्रोन फॉर हार्ट डिसीज.
बियॉन्ड 45 ईयर्स की एज अगर आप मेल हैं तो आपको एक हार्ट डिजीज होती है। एक जेनेटिक हिस्ट्री होती है कि फादर एंड मदर को हार्ट डिजीज थी, बट नॉट एट द एज ऑफ 80। अगर किसी के फादर को हार्ट डिजीज रही हो बिफोर 55 ईयर्स ऑफ एज, या मदर को हार्ट डिजीज रही हो बिफोर 65 ईयर्स ऑफ एज, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को आपको हार्ट डिजीज रही हो अर्ली डेज में, तो यू आर जेनेटिकली प्रोन फॉर हार्ट डिजीज। These you can't change. You can't change your genetics. You can't change your age. You can't change your male or female sex, right? जी बिल्कुल। Then there are certain things which are modifiable. जैसे smoking, you can quit. There is no room for smoking. Then diabetes you can manage, cholesterol you can manage, blood pressure you can manage. Can you believe 25% of adult Indian population is hypertensive? And only 10% of that 25%, अगर आप 25 को 100 करोड़ में कीजिए तो करीब 2.5 करोड़ आते हैं, 25 करोड़ आते हैं। In that 25 crore people, only 10%, that is around 2.5 crore, have normal blood pressure, maintained blood pressure. So, and diabetes, 11% of adult Indians are diabetic. तो आप देखिए, you are sitting on a volcano. डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। लोग हमारे खाने का तरीका भी बहुत खराब है। हमारा डिनर सबसे हैवी होता है, जो कि सबसे लाइट होना चाहिए। होता क्या है, दिन भर भाग दौड़ के अपना काम वाम करके फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, पनीर टिक्का, बटर मसाला, चिकन, हम खा वेजिटेरियन डाइट रहे हैं, लेकिन हम पनीर को फ्राई कर रहे हैं, गोभी को फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद और फिर सीधा बिस्तर, तो सीधे आप हॉरिजॉन्टल हो गए। जो खाना पूरे दिन धीरे धीरे डायबिटीज से क्लियर होना था, वो खाना आपने 12 घंटे को पेट पे रख लिया। I think top of that, pollution is very important. I am writing an article about pollution and various diseases. बहुत important role है pollution जो play कर रहा है। Eating habits, like I remember as a childhood we had no options. Whatever was cooked we had to eat. Either we had to eat or we had to be fasting. Now every family member is eating a different food. There are so much choices. There is so much of preservatives. There is so much of artificial diet in our diet. I think then lack of a very structured life. You don't get up in the morning, then we don't go for any walk or workout or exercise. And more important, which I feel is people have mentally too much of a stress. Like there was, if you see the COVID, whole COVID behavior was that you should be using mask, you should be using hand sanitization, and then social distancing, which I never liked this word. I thought it should be physical distancing and you should be socially connected. जी बिल्कुल। So people are very social. बहुत सही बात कही, आज आपने हमें इसका मतलब समझाया बेसिकली। जी देखिए, मैं खुद कोविड से एडमिट था। I was hospitalized for 5 days and God was kind. We were connected to so many people that in crisis वो हमारे 5 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। But I have seen people being totally alone and nobody is bothered. वो लगता था कि ये बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है, बट ही इज ऑल अलोन। तो सोशल कनेक्ट बहुत जरूरी है हमारा। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ ये सारी जो जानकारी साझा करने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलते चलते आज बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।